کہاں کس طرح کے حالات ہیں، کیونکہ جس طرح سے یہ پتہ چل گیا تھا کہ اپاچے ہیلی کاپٹر کو لے کر کے امریکہ ایران پر اٹیک کرے گا، اور ایران بھی اس بات کے لیے پوری طرح سے تیار تھا کہ اگر امریکہ جوابی کارروائی کرتا ہے یا امریکہ اگر حملہ کرتا ہے جوابی کیا حملہ، تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اور یہ تصویریں اس طرح کی چلائی جا رہی ہیں کہ کئی جگہ تہران سے لے کر کے کشم اور کئی ایسے مقامات ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ کیا جائے گا کہ کیوں یہ حملہ کیا گیا۔ یہاں پہ دیکھیں اس آپریشن کے بارے میں IRGC کی طرف سے کافی تفصیلات، اور خاص طور پہ اردن میں امریکی افواج کو نشانہ بنانے کے اس کا تازہ ترین مرحلہ ہے۔ آداب، میں ہوں ممتاز عالم رضوی، اور اس وقت میں آپ کے خدمت میں لائیو حاضر ہوا ہوں۔ اس وقت 10:20 ہو گئے، مجھے تاخیر ہوئی، لیکن تمام خبریں ان کو کلیکٹ کر رہا تھا اور تمام حالات کا جائزہ لے رہا تھا کہ آخر کہاں کس طرح کے حالات ہیں، کیونکہ جس طرح سے یہ پتہ چل گیا تھا کہ اپاچے ہیلی کاپٹر کو لے کر کے امریکہ ایران پر اٹیک کرے گا، اور ایران بھی اس بات کے لیے پوری طرح سے تیار تھا کہ اگر امریکہ جوابی کارروائی کرتا ہے یا امریکہ اگر حملہ کرتا ہے جوابی کیا حملہ، تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اور یہ تصویریں اس طرح کی چلائی جا رہی ہیں کہ کئی جگہ تہران سے لے کر کے کشم اور کئی ایسے مقامات ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ کیا جائے گا کہ کیسے یہاں پہ کشم آئی لینڈ، بندر عباس، اس کے علاوہ سیرک اور یہ بندر جست، یہ جو ہے ان تمام مقامات پہ حملہ کیا گیا ہے، ایسا یہ خبر آ رہی ہے۔ حالانکہ ابھی ایران کی طرف سے کچھ بھی کنفرمیشن نہیں ہے کہ کیا ان حملوں میں کتنا نقصان ہوا اور کیا ہوا، بلکہ ایران نے جوابی کارروائی شروع کی ہے، اور ایران نے جارڈن، بحرین اور کویت، ان تمام مقامات پر جہاں پہ امریکی بیسز ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے اور زبردست طریقے سے حملہ کیا ہے۔ اور ایران نے چونکہ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم کسی کو بخشیں گے نہیں، اگر ہم پہ حملہ کیا گیا تو ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ تو امریکی جو بیسز ہیں وہاں پہ اٹیک کیا گیا، اسرائیل کے اندر بھی سائرن بجے، لیکن ایران کی بجائے حزب اللہ نے اسرائیل پہ اٹیک کیا اور دعویٰ کیا ہے کہ تقریباً 30 سے 40 حملے جو ہے وہ حزب اللہ کی طرف سے کیے گئے ہیں، 40 کے قریب ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ حملے کیے گئے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں کس طرح سے یہاں پہ حملے دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور یہ بالکل کلیئر ہے، 14 اٹیک جو ہے وہ کیے گئے ہیں، یا حزب اللہ نے کلیم کیا ہے۔ اور یہ تمام جو فورسز، اسرائیلی فورسز ہیں وہاں ان پر یہ حملہ کیا گیا ہے۔ تو اس طرح دیکھا جائے تو حالات بہت کشیدہ ہیں، اور بات چیت کو ایک بار خطرہ لاحق ہو گیا۔ میں الجزیرہ کے حوالے سے جو خبر آئی ہے وہ میں سب سے پہلے آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، آپ کی خدمت پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ الجزیرہ نے دیا، کئی اور سورسز ہیں، میں آپ کو یہ دکھا بھی رہا ہوں۔ میں ایران جو ملٹری ہے، اسرائیلی جو فورس ہے، ان کی جو بھی ہے ان پر بھی مین اسٹریم میڈیا پہ بھی بات کروں گا، لیکن اس وقت یہ حالات آپ دیکھ لیجئے، اور یقیناً ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں بات چیت جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ حالانکہ پھر حملے کے باوجود ڈونالڈ ٹرمپ کا یہ بیان آیا ہے کہ ہم لوگ بہت جلد ٹیبل پر بیٹھیں گے۔ تو پھر یہ حملہ کیوں یہ حملہ کیا گیا؟ یہاں پہ دیکھیں اس آپریشن کے بارے میں IRGC کی طرف سے کافی تفصیلات، اور خاص طور پہ اردن میں امریکی افواج کو نشانہ بنانے کے اس کا تازہ ترین مرحلہ ہے۔ یعنی جارڈن میں جس طرح سے حملہ کیا گیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ کس طرح سے آپ دیکھیں حملے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیے، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کس طرح سے لگاتار حملے جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور IRGC کا اس پہ کیا اسٹینڈ ہے، IRGC اس پہ کیا کہہ رہا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔
यहाँ पे ईरान ने जैसे किश्म जजीरा, मिनाब और बंदर अब्बास समेत कई मकामात पर रातों रात अमरीकी हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की, अपनी धमकी को पूरा किया। लिहाजा ये वाकई दोनों फरीकों के दरमियान जवाबी हमलों की रात थे। तो ये आप देखिए, ये जो हमला जिस तरह से अमेरिका ने किया, और अमेरिका ने 4 जसक जो है यासे कश्म जजीरा, मिनाब और बंदर अब्बास समेत कई मकाम पे ये रातों रात अमेरिका हमला किया। तो उसका जवाब उसी वक्त ईरान ने, और जैसा कि मैंने कहा कि ईरान ने पूरी अपनी तैयारी कर रखी थी, और ईरान ने साफ कह दिया था कि अगर हम पे हमला किया गया तो हम भी हमला करेंगे। और यहाँ पे आप देखिए ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज के करीब जस्सा, कश्म, बंदर अब्बास और सरक जैसे मकामात की एक वसी रेंज अमेरिका का निशाना बनाया गया था। इन मकामात को कम से कम 2 बार निशाना बनाया गया, जिनमें से ज्यादातर रातों रात अमेरिकी अफवाज ने निशाना बनाया। अब ईरान की तरफ से इसका जवाब दिया गया। ईरान ने इसका शदीद जवाब दिया है, और जो अमेरिकी बेसेस हैं उनको निशाना बनाया है। तो ये देखिए, यहाँ पे ये तस्वीर भी देख सकते हैं। मैं और अपडेट देता हूँ। अब हिजबुल्लाह ने इजराइल पे चूंकि हमला किया था अमेरिका ने, तो अमेरिका के बेसिस को ईरान ने टारगेट किया है और उसको निशाना बनाया। अब यहाँ पे देखिए जो हिजबुल्लाह का बयान आया है, ये भी हिजबुल्लाह का बयान भी अल जजीरा ने अभी बिल्कुल ताज़ा तरीन यहाँ पे जारी किया। हिजबुल्लाह ने जुनूबी लेबनान में इजरायली फोर्सेस पर 14 हमलों का दावा किया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने जुनूबी लेबनान में इजरायली फौजी एहलकारों, बख्तरबंद गाड़ियों और कमांड पोस्टों को निशाना बनाते हुए ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट हमलों का सिलसिला शुरू किया है। यहाँ पीर की रात, यानी अभी जो रात गुजरी, रात से मंगल तक की कार्रवाइयों के बारे में बयानात के मुताबिक ग्रुप ने कहा है कि इसकी फोर्सेस ने लेबनानी कस्बों ब्यादा, राचिफ, अलकौज और कंतारा में इजरायली फौजियों और हथियारों के इज्तिमात को बार बार निशाना बनाया है, बार बार उन पे हमला किया है। बयान में मुतअद्दिद आला असर अंगेज कार्रवाइयों पर रोशनी डाली गई, जिनमें ड्रोन हमले शामिल हैं, जिन्होंने ज़ौतार, अल शर्किया और खयाम में 2 इजरायली नमरा बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया है। सलाह हिल में एक फौजी मवासलात गाड़ी और नकूरा में एक फौजी कमांडर सेंटर को निशाना बनाया गया। यहाँ पे ये तफसील हिजबुल्लाह की तरफ से दी गई है, और यहाँ पे अल जजीरा ने उसे कोट किया है। और ये आप देखिए, यहाँ हिजबुल्लाह ने इजराइल के हरीस 450 ड्रोन को अल कलीम, अल तफा पर वापस करने के लिए जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल के इस्तेमाल और रास नकूरा में धमाका खेज ड्रोन के स्क्वाड रन को लॉन्च करने की भी इत्तला दी, जिसे इजरायली बहरिया के मकाम रविश हांकरा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से ये अटैक किया गया, किस तरह से ये हमला किया गया। यहाँ पे बहुत वादे तस्वीर सामने आई है। और जैसा कि मैंने बताया, जो जवाबी कार्रवाई हुई है उसमें ईरान ने इजराइल को टारगेट नहीं किया है, बल्कि ये टारगेट जो है वो जो अमरीकी बेसेस हैं उनको निशाना बनाया गया। तो ये बिल्कुल इस वक्त के ताज़ा सूरत हाल है। अब इसमें एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस बात से इजराइल को काफी खुशी हुई होगी, क्योंकि इजराइल लगातार ये कोशिश कर रहा था कि बातचीत मुतासिर हो और बातचीत होने के बजाय जंग हो। ये बिल्कुल क्लियर था। अब यहाँ अमरीकियों ने एक और ताज़ा खबर अल जजीरा से बिल्कुल अभी आई है। अमरीकियों ने अब कहा है कि उन्होंने अपना ऑपरेशन रोक दिया है या मुकम्मल कर लिया है। ईरानियों ने भी अभी तक ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है
لیکن سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ دونوں طرف سے خطے میں دوبارہ مکمل جنگ کی خواہش نہیں ہے. یعنی دونوں طرف سے ادھر اپاچے کے انتقام میں بدلے میں امریکہ نے حملہ کیا، اور اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایران نے بھی جوابی کارروائی کی. لیکن جوابی کارروائی کے بعد اب دونوں نے ایک دوسرے پہ حملے کو روک لیا ہے. یہی خبر آ رہی ہے. اور جیسا کہ میں نے بتایا ڈونالڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر بات چیت کی. لیکن سوال یہ ڈرامہ کیا ہے، یہ وجہ کیا ہے اس طرح سے اٹیک کرنا؟ اور جب اٹیک ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ بار بار یہ ایران کہہ رہا ہے، انصار اللہ لاہوتی نے یہ بات کہی ہے کہ ہم یہ جو ریڈ سی ہے، باب المندب ہے، اس کو ہم بند کر دیں گے. بلکہ اسرائیل اور امریکہ کے لیے باب المندب کو بند کر دیا گیا ہے. تو اس سے جو ایک گہما گہمی، اور اگر پوری طرح سے یہ بند کر دیا گیا تو پھر تو بڑا ہنگامہ ہو جائے گا، ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا. لیکن یہاں پہ تصویر سامنے آئی ہے کچھ میں سوشل میڈیا جو ایکس پلیٹ فارم ہے وہاں پہ، کیونکہ بہت زیادہ ہم اس پہ اعتماد نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی کچھ ایسی خبریں ہوتی ہیں وہاں پہ جو قابل سماعت بھی ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ کہا گیا دونوں فریق، یعنی دونوں گروپ، دونوں ملک فریق رد عمل اور جوابی کارروائیوں کی پیمائش کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شاید دن کے وقت ان حملوں کا تسلسل نہیں دیکھ پائیں گے جب تک کہ امریکیوں کو ایران کی جانب سے تازہ ترین جوابی کارروائی کے حوالے سے اتنا درد محسوس نہ ہو. امریکیوں کو حذف کرنے جا رہے ہیں یا نہیں، یہاں پہ ابھی دیکھیے کس طرح کی کیا تیاری ہے، کچھ بھی نہیں بتایا جا رہا. لیکن یہاں حملے کہ جیسا کہ میں نے کہا کس طرح کی آپ دیکھیے یہاں پہ کارروائی کی جا رہی ہے، کس طرح کا یہاں ماحول بنایا گیا ہے. اور یہ ہم نے بتایا آپ کو کہ پھر سے ابھی یہ 3 گھنٹے پہلے اسرائیل فورس نے بریکنگ کے نام سے the crisis is rapidly escalating، یہ انہوں نے بتایا. اور یہ بتایا کس طرح سے پھر سے امریکہ نے بالکل تازہ ترین جو ہے وہ حملے کر دیے اسٹریٹ آف ہرمز کے پاس. انہوں نے کہا کہ ملٹیپل جو ہے دھماکے یہاں دیکھنے کو ملے ہیں. لیکن فی الحال جو خبر ہے وہ یہ کہ ابھی اب کسی طرح کی کوئی اسٹرائک نہیں ہوئی ہے. تو یہاں پہ اور یہ جو بات چلائی جا رہی تھی کہ تہران پہ، تو تہران پہ بھی کوئی اٹیک نہیں ہوا ہے. وہیں اٹیک ہوئے ہیں کہ جہاں پہ بیسز ہے ایران کے، جہاں پہ ایران کے فوجی اڈے انہی کو نشانہ بنایا گیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے خلاف کارروائی تو کر رہے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھ رہے ہیں کہ بس جوابی کارروائی ہو جائے، لیکن جنگ بہت تیزی سے بڑھ جائے، ایسا کوئی ارادہ یہاں پہ دکھائی نہیں دیتا. یعنی نہ تو اسرائیل جنگ بڑھانا چاہتا ہے، نہ تو امریکہ جنگ بڑھانا چاہتا ہے. یہاں پہ یہ بات بہت واضح ہو گئی ہے. اب ایک اور خبر جو آ رہی ہے وہ یہ، جس بات کو لے کر کے یہ پوری جنگ چھڑی ہوئی ہے، وہ یہ کہ یورینیم کا کیا ہوگا. یہاں پہ نیوکلیئر اور بار بار یہاں انریچ جو ہے نیوکلیئر کا کیا ہوگا، 400 کلو گرام ہے. اب یہاں ایک بار پھر دیکھیں ایران نے بہت کلیئر کر دیا ہے، یورینیم ملک کے باہر نہیں بھیجے گا ایران. بہت کلیئر ہو گیا. امریکہ سے سمجھوتے میں 4 پوائنٹ پر اتفاق کا دعویٰ. اب یہاں پہ دیکھیے ایک طرف ادھر سے بھی بیان آ رہا ہے ڈونالڈ ٹرمپ کی طرف سے، اور دوسری طرف یہ بیان بھی آ رہا ہے. یہاں پہ دیکھیے کہ کس طرح کے بیان یہاں پہ سامنے آ رہے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے حالات اور بیانات یہاں بہت واضح طور پر دکھائی دے رہے ہیں. اور جیسا کہ ہم بتا رہے ہیں یہاں پہ تہران سے جو خبر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایران کی قیادت نے اپنا یورینیم اسٹاک ملک کے باہر بھیجنے کی بات نہیں مانی ہے، لیکن مبینہ طور پر اسے ڈائلوٹ کرنا قبول کیا ہے. نیو یارک ٹائمز نے منگلوار کو اپنی رپورٹ میں بتایا کہ امریکہ اور ایران میں سمجھوتے کے لیے زیادہ تر مدعوں پر بات بن گئی ہے، زیادہ تر مدعوں پہ. اور یہ نیو یارک ٹائمز لکھا ہے. اور جیسا کہ میں نے بتایا
कि डोनाल्ड ट्रंप भी ये कह रहे थे। इसमें ईरान के यूरेनियम जो इनरिच और ईरानी न्यूक्लियर मकामात की देखभाल का मुद्दा भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और अमेरिका की बातचीत 4 जो अहम पॉइंट्स है उस पर मरकूज है, मतलब केंद्रित है। इसमें ईरान के यूरेनियम इनरिच को लंबे वक्त तक रोकने, मौजूदा इनरिच्ड यूरेनियम जखीरे को कम करना, ईरानी जो न्यूक्लियर मकामात है उनको खत्म करना, और इंटरनेशनल जो न्यूक्लियर निगरानी इदारे हैं को ईरान में अचानक निरीक्षण करने का अधिकार, यानी छापेमारी टाइप की, कि वो जब चाहे वो कर लें। इस तरह की इजाजत जो है उन्हें मिलनी चाहिए। कि यहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार यह मुताबिक अमेरिका ईरान से यूरेनियम को मुल्क के बाहर ले जाने की मांग को नहीं मानेगा, ये साफ कर दिया है। वो कह रहा है कि ईरान से बाहर हम कहीं, पहले ये हो रहा था पाकिस्तान चला जाएगा, रूस चला जाएगा, नॉर्थ कोरिया भेज दिया जाएगा, फिर आया कि चीन भेजा जाएगा। ईरान ने कहा मुल्क के बाहर नहीं जाएगा। और ये बात मैं आपको बता दूं कि जो रहबर मुअज्जम आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब ने बात कही थी कि हमारा जो ये यूरेनियम है वो कहीं नहीं जाएगा। वही बात यहाँ पे सामने आ रही है। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक अमेरिका ईरान से यूरेनियम को मुल्क के बाहर ले जाने की मांग को ठुकरा दिया है। इसके बजाय जो जखीरा है उसको कम करने के लिए कहा है कि हाँ उसमें हम कमी कर सकते हैं। जो इंटरनेशनल जो मानक है IAEA के साथ मिलकर काम करने के लिए रजामंदी जाहिर की, और पहले भी साइन किया, इनके साथ काम कर रहे थे। तो ऐसा तो है नहीं है। IAEA के मुताबिक ईरान के पास 60% तक एनरिच 440 किलोग्राम यूरेनियम था। जून 2025 के अमरीकी हमलों से इसमें कितना नुकसान हुआ ये साफ नहीं है। हालांकि कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है ऐसा कहा जा रहा है। और ये भी बात कहीं ना कहीं आ रही है कि ईरान ने अपना काम कर लिया है। ईरान जो है, और ईरान कह रहा है कि भाई हमें अब न्यूक्लियर, हमारे लिए जो परमाणु बम है वो तो स्टेट ऑफ हुर्मुस है, हमें अब किसी बात की परवाह नहीं है, किसी बात की फिक्र नहीं है। तो ये अब ईरान का कहना है कि भाई हम जो है, हमें क्या है, हमारा जो काम था वो हमारा काम हो गया, ये इनका कहना है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से ये स्ट्राइक हुई है। तो एक तो ये बात बिल्कुल से वादे हो गई है कि बहुत तगड़ा, और यहाँ पे आप देखिए हेलीकॉप्टर के जवाब में ये हमला किया गया था। और अभी इजराइल की तरफ से कोई नहीं, कि इजराइल की तरफ से अभी कोई अटैक हुआ है नहीं हुआ है, इस तरह की कोई बात नहीं आई। लेकिन इजराइल ने, ये सही है कि इजराइल ने अमेरिका ईरान पर कोई अटैक नहीं किया है। यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर है कि कोई किसी तरह का अटैक नहीं किया गया है। लेकिन हिजबुल्लाह यानी लेबनान और इजराइल में जंग चल रही, ये बिल्कुल वादे है। और वो कब रुके, कैसे रुकेगी, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल बहुत वादे हम देख पा रहे हैं। और ये आप देखिए इस वक्त के ताज़ा तरीन जो खबरें हैं वो मैं आपके खिदमत में पेश कर रहा हूँ, अल जजीरा के हवाले से भी और जो दूसरे सोर्सेज है। यहाँ पे एक और खबर आ रही है, और वो देखिए अब जो ईरान के वजीर खारजा है सैयद अब्बास अरागची, उनके हवाले से खबर आ रही है। और एक खबर जो आ रही है वो सऊदी अरब और तुर्की के हवाले से, वो भी मैं समझता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं सैयद अब्बास अरागची क्या कह रहे हैं, क्योंकि हुर्मुस हमारा है, हमले का देंगे करारा जवाब। अमेरिकी स्ट्राइक के बाद भड़के ईरानी विदेश मंत्री, ट्रंप को दे डाली धमकी। अब यहाँ पे और कार्रवाई भी की है, लेकिन ये बयान और आया है। ईरान के विदेश मंत्री वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची ने हुर्मुस के पास केशम आइलैंड पर अमेरिकी फौज के हमले के बाद सख्त रद्द अमल जाहिर किया है। सैयद अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिका के किसी भी हमले को हम बिना जवाब दिए नहीं जाने देंगे।
अपने अपाचे हेलीकॉप्टर गिरने के बाद अमेरिकी फौज ने मंगलवार को रात पर हमला कर दिया था। इसके बाद ईरान ने जवाबी हमलों की धमकी दी है और जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। यहाँ पे अब्बास अरागची ने आज सुबह अपने बयान में कहा, अभी सुबह जब हम बातचीत कर रहे हैं, जब हम लाइव हैं, तब उनका बयान आया है। उन्होंने बयान में कहा कि जंग के मैदान में हार के बावजूद अमेरिका हमारे संकल्प की, हमारे अहद का इम्तिहान ले रहा है। कह रहा है कि हार गया है अमेरिका और 2 बार हार चुका है, फिर भी अभी भी वो हमारा इम्तिहान ले रहा है। अमेरिकी समझ लें कि हमारी शक्तिशाली सेनाएं यानी हमारी फौजें ताकतवर किसी भी हमले या धमकी का मुंहतोड़ जवाब देंगी। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हमारे इलाके से चले जाएं। यहाँ पे बहुत क्लियर कट कह दिया है। अमेरिका को एक तरह से बड़ी धमकी यहाँ पे दी है। ये बड़ी धमकी के तौर पे इसे देखा जा सकता है कि अगर आप अपने सलामती चाहते हो, अगर चाहते हो कि आप महफूज रहो, तो हमारे इलाके को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि हम अब बख्शेंगे नहीं। तो ये अपने आप में एक बड़ा बयान सैयद अब्बास अरागची की तरफ से यहाँ पे दिया गया है। और क्या कहा अब्बास अरागची ने? सैयद अब्बास अरागची ने अमेरिका को खबरदार किया है, चेतावनी देते हुए कहा है कि फारस की खाड़ी का इतिहास बाहरी घुसपैठियों के बुरे अंजाम की कहानियों से भरा पड़ा है। कहा देख लो कि यहाँ किसका क्या हश्र हुआ है, तारीख पढ़ो, तब तुम्हें समझ में आएगा। और इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारे इलाके के पास विदेशी सेनाओं पर हमेशा खतरा मंडराता रहता है। ये खतरा इंसानी गलतियों की वजह से, हादसों या फिर दोनों तरफ की गोलीबारी में फंस जाने की वजह से हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत क्लियर कट सैयद अब्बास अरागची ने कहा है कि तुम जितनी जल्दी हो सके इसे खाली कर दो। या अमरीकी फौज को होर्मुज से दूरी बनाने की सलाह देते हुए सैयद अब्बास अरागची ने कहा कि आपके लिए अपने ऊपर से खतरे को कम करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चले जाएं। सैयद अब्बास अरागची ने कहा कि हम कूटनीति की भाषा पसंद करते हैं, लेकिन दूसरी भाषाएं भी बोल सकते हैं और मौका पड़ने पर फौजी तरीके का भी हम जवाब देंगे। तो यहाँ पे आप देखिए किस तरह का बयान सैयद अब्बास अरागची की तरफ से आया है, और ये बहुत क्लियर कट मैसेजिंग है। यहाँ होर्मुज स्ट्रेट के आसपास अमेरिकी नेवी की मौजूदगी पर भी एक बार फिर सैयद अब्बास अरागची ने एतराज जताया है। सैयद अब्बास अरागची ने अपने बयान में कहा कि होर्मुज कोई इंटरनेशनल जल क्षेत्र नहीं है, इस पर ओमान और ईरान का पूरा अधिकार है। ऐसे में किसी को भी इस क्षेत्र में दखल का कोई इख्तियार नहीं है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये इंटरनेशनल जो है नहीं है ये कि आप यहाँ पे कोई भी आ जाए। भाई ये वाटर वो नहीं है, यहाँ पे इंटरनेशनल वाटर जो एरिया है वो नहीं है, बल्कि इस पे हमारा और ओमान का है, और हम जो चाहेंगे वो यहाँ करेंगे। तो यहाँ पे और अमेरिका कह रहा है, भाई ईरान कह रहा है कि हम यहाँ से टैक्स वसूल करेंगे, हम यहाँ से जो भी गुजरेगा हम अब उससे सिक्योरिटी के नाम पे टैक्स लेंगे। अमेरिका कह रहा है टैक्स हम नहीं लेने देंगे, और नाकाबंदी भी अमेरिका ने कर रखी। यही झगड़ा इस वक्त स्टेट ऑफ होर्मुज का है, लेकिन एक पूरी गाइडलाइन ईरान ने तैयार कर दी है। और खबर यह है कि अब यूएई भी टैक्स अदा कर रहा है, सऊदी भी इधर हिंदुस्तान के बारे में बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान भी पैसे दे करके तेल मंगा रहा है, ये ऐसा कहा जा रहा है। इसके अलावा चीन और दूसरे जो माल बरदार जहाज हैं वो सारी अपनी डिटेल वहां दे रहे हैं, और वहां से इस तरह से तो यहाँ पे तबरेज भाई यहाँ पे जुड़े हुए हैं। यहाँ ट्रम्प एंड नेतन्याहू प्राइड टर्निंग टू एशेज, बिल्कुल। और यहाँ पे राख होता हुआ गुरूर गुरूर तबरेज भाई लिख रहे हैं। इसके अलावा मोहम्मद अमजद जागीर पाशा वालेकुम अस्सलाम, शेख करीम ने लिखा है जिस तरह मिस्र और इसराइल के बीच पूर्व में हुई जंग के इसराइलियों का हारना और फिर साजिश के तहत जीतना, ऐसा ही अमेरिका ईरान के साथ करना चाहता है। लेकिन देखिए ईरान बहुत ही इस वक्त आप ये समझ लीजिए कि
बहुत ही सूझबूझ से काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए अपाचे हेलीकॉप्टर को मोसाद ने गिराया है। अब यहाँ अलमदार साहब ने कहा है कि अपाचे हेलीकॉप्टर को मोसाद ने गिराया है। अभी इसमें कितनी सच्चाई है हम नहीं कह सकते, क्योंकि ईरान की तरफ से ऐसा कुछ भी बयान नहीं आया है कि उसे किसने गिराया। यहाँ अब तो बदबूते या अब लगता है कि ईरान भी इनमें शामिल हो गया है। और अब तो ये अलमदार भाई क्यों आपको ऐसा लग रहा है? यहाँ पे ईरान जो है लगातार हमले कर रहा है, और यहाँ तो अब लगता है कि ईरान ईरान ने इसका जवाब दिया है, ईरान ने हमला किया है। तो अब भाई अलमदार साहब ये क्यों इस तरह से सोच रहे हैं मुझे नहीं पता, और मुझे देख रहे हैं तो क्यों वो उनको ऐसा लग रहा है, जरूर बताएं। क्या चाहते हैं कि ईरान जो है अपने आप को तबाह कर ले, अपने आप को खत्म कर ले, और उससे क्या होगा? मैनुद्दीन सलमानी साहब, भाई ईरान ने लेबनान पे हमला हुआ, उसके लिए इसराइल को टारगेट किया, इसराइल को निशाना बनाया। तो और आप देखिए फिर वो लगातार निशाना बना रहा है। तो क्या करे? ऐसे तो नहीं हो सकता है कि बिल्कुल से भाई कहाँ कर दे, क्या वाशिंगटन हमला कर दे? भाई जॉर्डन को टारगेट किया, कुवैत को टारगेट किया, इसके अलावा बहरीन को टारगेट किया। हाँ, तमाम जो टारगेटेड हो सकते हैं वो किया, तो कहाँ हमला कर दे? हाँ? भाई क्या आपकी मुराद क्या है यहाँ पे? तो बहरहाल यहाँ पे मैनुद्दीन सलमान तबरेज साहब ने लिखा है इजराइल ईरान के हेलीकॉप्टर मिसाइल की जद में है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है। तो बहरहाल ये सूरत हाल है, और अलग अलग तरह की बातें बहरहाल लोग करते हैं, लेकिन इस वक्त की ये सारी अपडेट थी जो हमने आपके अंदर पेश की है। और फिर हम अगर कोई बड़ी खबर होगी तो फिर हम आपके अंदर में लाइव हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। खुदा हाफिज।